This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirva Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirva Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. This is a first video on the topic polynomials of class 9. And according to Nirva Mathematics book, in the first section, we will discuss what is actual the polynomial. So I would like to ask one question, and that is very logical question. That is, if I'm asking to you, can we find a side of a square whose perimeter is greater than its area by 4? So we can draw any square. Its length we can consider anything. But I particularly required such a square whose length we want to find, and that square's speciality is it's a perimeter. That means summation of its four sides is always greater than its area by 4. So how we can model this word problem into mathematics? So here we want to find the side of the square, and which we don't know. That's why we are considering by some letter. So letter may be X, maybe Y, maybe L, maybe anything, but important is what you are considering, and that consideration is made for what purpose. So I am considering some letter for the purpose to denote the side, length of the side of the square. So that's why I can consider X, let or assume X is side of square, because we don't know exactly what will be the length of side. And what are the requirements, or what are the conditions imposed in the question? The perimeter is greater than the area of that square. So perimeter is greater than by 4. That means this is greater by 4. So if I will subtract 4 from this greater part, then it will become equal to this area. So what is the formula of perimeter of a square? That is 4 into side, and we already assume that side is x, therefore it is 4x minus 4 and equal to the formula of area of square is x square. If you transfer these two sides into the right side, then I will get 0 is equal to x square minus 4x plus 4. Look at this expression in the right hand side. If you take this expression which is available in the right hand side separately, then what is this? This is algebraic expression, because it is made by some addition, subtraction, multiplication and squaring, all the things. So this is an algebraic expression. But what is the speciality of this expression? You know, this expression has 3 terms. First, second, third. The first term having the index power of x is 2. The second term is also x having the index power 1. And the third term, there is no x, means it is a constant term. It means its index power is 0. So what we observe in this expression, there are 3 terms, each term containing variable x, and their powers are like 2, 1, 0. That means these are the integers, non-negative integers. So such an expression is called as a polynomial. And polynomial is a thing which represents something. Therefore, polynomial को भी हमको p या q या r बोलना होगा. ये मेरे लिए polynomial है,
and this polynomial is constructed using the variable x, therefore we write here x. So this is called as a p of x. It is not a p into x. The p is polynomial, that means there is a rule, squaring, multiply by 4, addition of 4 and their subtraction. This rule is denoted by p, and that is a polynomial, and that rule is executed due to the variable x, therefore this is having some special meaning, that is a polynomial in variable x. So after that, suppose I will write this as a polynomial p of x is equal to x square. So what is the meaning of p and what is the meaning of x? I am explaining here. So suppose in this polynomial, if I am putting x is equal to 3, so I'll get the value of this p of 3 is equal to square of 3, and that is 9. The meaning is, when the value of x is equal to 3, the value of this p is 9. The actual meaning is, when the side of the square is 3 units, then this p represents the area of that square, and that is 9 units. So here p indicate area of the square, and this x indicate the side of the square, and the area of square is depend on the side of the square. Therefore this 9 in this case for me it represents area of a square. So this polynomial implies what? Area of square. You just put the value of x, that means length of any side, and you will get the answer, and that will be the area of square. Now in the same case, if I will put p and 3, I will get 9 again, but what it represent? It represent not area. What it represent? So you consider any first 3 prime numbers. So first prime number is 1, then second prime number is 3, and third prime number is 5. Add them, you will get what? 9. So now here x is not a side of the square. It is a number represent first primes, and this p is not a square area square. It represents the sum of first 3 numbers. So now here this polynomial, same polynomial, represents sum of squares, the sum of primes, first primes. Now I'll consider another polynomial whose name is q, and it is depend on suppose n. So I'll write this as n square upon n plus n square upon 2 plus n upon 2. Or we can write this as a 1 by 2 n square plus 1 by 2 n. So what is this? This is the index power c, not this is a positive, this is a 1 is positive, therefore it represents polynomial. But actual polynomial is a general term. It specifies something. It indicates something. And what is that? Put n is equal to 5. Put n is equal to 5 in this polynomial, then q of 5 is equal to 1 by 2, the square of 5 is 25, plus 1 by 2, and n is 5. So if you add them, the common denominator is 2, and here we can add this, and therefore we'll get 30 upon 2, that is 15. So this is the value of the polynomial when I'm putting n equal to 5. What it means? It means that you take first 5 natural numbers, 1, 2, 3, 4, 5. This 5 means first natural numbers. Add them. When you add, this is 9, 12, 14 and 15. So this is equal to this. Means here q is a polynomial which represents what? Sum of natural numbers. So when you put n equal to 7, it will give you sum of first 7 natural numbers. When you put n equal to 100, the q will give you sum of first 100 natural numbers. So that's why in your physics, when you are writing equations of motion, then something you are writing force is equal to t square by 2 plus gt something. What is this? This is a polynomial in t. T is a time.
So it represent what? Some force or velocity or displacement, whatever. I am not remembering this, but this is a polynomial. So polynomial is a very interesting and very general subject. It may represent how many oxygen you are breathing. It represent if suppose the femur length on the due to the length of femur, you can calculate the length of, or height of the person. So the polynomial is something which will give you knowledge which is depend on some variable. So in that fashion you have to understand the concept of polynomial. Okay, now after that I would like to ask some questions. Actually मेरा मकसद यही है कि बच्चे जो है ना, स्टूडेंट जो ये टॉपिक सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग खुद सवाल करें, क्योंकि सवाल में क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी से ही आप अच्छा पढ़ सकते हो. तो सवाल में आप मुझे पूछना चाहिए, बट अब मैं ही खुद आपकी तरफ से आपकी रिप्रेजेंटेशन में मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. So what is algebraic expression? You take any variable and then some numbers, multiply these variables and numbers, add them, divide them, square them, take a square root, anything. That expression created by using arithmetic rules, simple algebraic rules, and that's why that is called as algebraic expression. So suppose I am writing here, I am considering variable z. So z square plus 3z cube minus 5 upon z plus 7z raised to 3 by 2. What is this? Addition, subtraction, multiplication, power, root. So it is expression, algebraic expression. But this is only algebraic expression. It will not polynomial. So why it is not polynomial? Because polynomial is a special type of algebraic expression in which you have to consider the variable any, and the power of the variables must be non-negative and non-fraction. मतलब ये जो है ना, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और उसका पावर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए. यहाँ पर देखिए z नीचे है, इसका पावर 1 है, लेकिन इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इंडेक्स का साइन चेंज होगा, तो z raised to -1 इट हैज अ नेगेटिव पावर. और यहां पर तो पावर क्लियर कट फ्रैक्शन है, ये भी नहीं चलेगा. तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है z या कोई भी वेरिएबल होगा, उसको आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन उसका पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, बट नेगेटिव नहीं चलेगा और फ्रैक्शन नहीं चलेगा. सो दिस इज द आई थिंक डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. सो next question, the MCQ means most curious question asked by the student to the teacher. So what is the meaning of x in the polynomial in x? देखिए पॉलिनोमियल सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है. जब आप सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हो तो हाउ आई कैन अंडरस्टैंड कौन सा वेरिएबल आपने लिया है. तो आपको जब भी बात करनी है, लिखना है, टीचर से डिस्कस करना है, फ्रेंड से डिस्कस करना है, तो पॉलिनोमियल इन वो वेरिएबल मेंशन करना होगा, तो मुझे समझेगा कि आपका वेरिएबल एक्स है एंड उस एक्स से एक पॉलिनोमियल बनी है और उसकी आप बात कर रहे हो, राइट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्स? इंस्टेड ऑफ एक्स यू कैन टेक वाई आल्सो इन द पॉलिनोमियल. सो एक्स का मतलब होता है समथिंग विच वी डोंट नो. मतलब एक बैग है, उस बैग में कुछ रखा हुआ है, लेकिन आपको पता है उसमें कुछ है, बट जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या रखा हो. तो एक्स वाई जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में यूज होता है, दैट इज नॉट डिटरमाइंड. वो आपको पता नहीं होता है, तो इसलिए उसको इनडिटरमिनेट भी बोलते हैं. तो सही इनडिटरमिनेट वर्ड ही है पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन इनडिटरमिनेट वर्ड शायद हेवी लगता होगा लोगों को, इसलिए बुक्स में, स्कूल बुक्स में मोस्टली वेरिएबल यूज किया है. लेकिन वेरिएबल और इनडिटरमिनेट दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन
प्रॉपर वर्ड पॉलिनोमियल के लिए जो है वो है इनडिटरमिनेट, मतलब ऐसी वैल्यू जो अभी डिटरमाइन करना बाकी है, यू हैव टू डिटरमाइन, और वो सॉल्व करने के बाद डिटरमाइन होगी। तो x का मतलब होता है पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसका मतलब होता है दैट x may be, you can say that this is a variable, or you can say that instead of variable, indeterminate। तो इसलिए बोला जाता है कि p is a polynomial in x, या तो ऐसा बोलेंगे आप, या p is a polynomial in indeterminate x। यहां पर ये, यहां पर आप वेरिएबल लिख सकते हो, इन वेरिएबल x। तो आपको ये पता चलता है कि कौन वैरी हो रहा है और वो किस वेरिएबल पे डिजाइन की गई है। तो दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। Another question is, how can we construct a polynomial in some variable? Okay, so if you want to construct the polynomial, if you that means just consider any variable, whatever you like. See, अगर आप a को वेरिएबल बोलते हो, गुड, कोई भी लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें शर्त, कंडीशन ये है कि आपने उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि दैट इज द लेटर एंड आई एम कंसिडरिंग दिस लेटर एज अ वेरिएबल। एक्स वाई जेड ने कोई ठेका लेके नहीं रखा है कि वही वेरिएबल बोल के काम करेंगे। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है। तो इसलिए यहां डिक्लेयर करते हैं हम कि यहां हमारा वेरिएबल क्या लेंगे, वेरिएबल इज, आई एम कंसिडरिंग इज जेड। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, कुछ नंबर्स ले लीजिए आप, नंबर्स लेंगे आप 3, लिस्ट बनाइए नंबर्स की, 3, -7, 11, then 0, then 6, and you can take as a 1। इतने नंबर्स लिए आपने। ओके, अब ये जो आपका वेरिएबल है, इसको आप इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, हर नंबर के नीचे आपका वेरिएबल रहेगा, और आप इसके पावर्स लीजिए। पावर्स आपकी मर्जी, लेकिन शर्त है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपने यहां पर 0 लिया, यहां पे 2 लिया, यहां पे 4 लिया, यहां पर 7 लिया, यहां पर 9 एंड यहां पर 99 लिया। ओके, दैट्स ऑल। नाउ द z⁻0 इज 1, एंड अब ये दोनों रो का मल्टीप्लीकेशन लीजिए। ये 1 है, 1 into 3 इज 3। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -7z², सॉरी। इनका मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो हो जाएगा +11z⁻4। इनका मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो आप आएगा 0 into z⁻7। इनका लेंगे तो 6 into z⁻9, और इनका लेंगे तो दिस इज 1 into z⁻99। Now you know that this is a 3 as it is, -7z² as it is, plus 11z⁻4 as it is, and 0 into anything is 0. Therefore, we can keep this term, and here we are writing 6z⁻9 plus z⁻99, and this is your polynomial in the variable z. Right? So in this fashion you can construct, and this what is the meaning, we will see it later on. Okay, the next question is, what are the terminologies used in the polynomials? Okay, now I am considering one polynomial p of t. P is a name of polynomial and t is a variable which is used to construct that polynomial. Okay, so और polynomial का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो है ना, जो हाईएस्ट पावर होता है उसमें, उसको पहली पोजीशन पे रखोगे, फिर उससे डिक्रीजिंग पावर में सारे टर्म्स लिखोगे। तो मैं एक पॉलिनोमियल कंसिडर करता हूं इन t, दैट इज 3t⁻15 -4t⁻9 plus 7t⁻³ plus 8. This is some polynomial. Is it a polynomial? Yes, because variable is t and all the powers of that t are non-negative and non-fraction. So we can say it is a polynomial. Okay, all right.
Now terminologies means what? You just observe this expression. How many terms are there? 1, 2, 3, 4. 4 terms are there. Okay. Which variable is involved here? Only one variable, that is the t. Okay, so t is a variable for this polynomial. Right. Now, this is the first term and the power of t is 15 and the remaining powers are less than 15. So the highest power of t is 15. Therefore, this term, this first term is called as leading term. Leading term. This is the terminology you have to understand. In any polynomial, the highest index power containing term, that is called as what? Leading term. And therefore, this 3 is called as a coefficient. Therefore, this coefficient is associated with leading term. Therefore, this is called as a leading coefficient. तो आपको जो है ना लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते ही समझ में आना चाहिए कि उस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा इंडेक्स पावर जो भी रहेगा उसका कोएफिशिएंट ये है, दैट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट. नाउ दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ t raised to 9. दिस इज, इसको कुछ ऐसा नोमेनक्लेचर सेपरेट नहीं है, लेकिन अब ये जो पावर्स है ना इसका नोमेनक्लेचर है. फर्स्ट टर्म में t का पावर 15 है, तो इस टर्म की डिग्री होगी 15. डिग्री वर्ड यूज किया जाता है पावर्स के लिए पॉलिनोमियल. यहां पर t का पावर 9 है, तो सेकंड टर्म का डिग्री होगा 9, थर्ड टर्म का डिग्री होगा 3 और 8. यहां कुछ वो नहीं है, मतलब t raised to 0, तो लास्ट टर्म का डिग्री है 0. तो ये हर टर्म को डिग्री रहेगा. डिग्री मतलब पावर ऑफ दैट वेरिएबल. लेकिन ये पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री एक ही रहेगा. टर्म का डिग्री सेपरेट, हर टर्म में पावर कितना है दैट इज द डिग्री. लेकिन जब आप एक साथ उस पॉलिनोमियल को देखते हो तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is equal to what is that? Highest index of what? Variable with non-zero leading term. That is very important. Non-zero leading term. क्योंकि इसमें ये बात भूल जाते हैं हम कि लीडिंग टर्म को देखना जरूरी है, वो जीरो नहीं होना चाहिए. वरना आपको है ना कभी कभार कोई पूछ सकता है कि देखिए ये है 2 plus 3x square plus 4x raised to 11 plus 0x raised to 15. तो आप बोलोगे देखो ये हाईएस्ट इंडेक्स पावर है तो ये डिग्री हो जाएगा. गलत कर रहे हो आप, ये डिग्री नहीं होगा क्योंकि उसका ये अगर लीडिंग टर्म है तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो चाहिए डिग्री बोलने के लिए. तो ये तो जीरो है, तो ये लीडिंग टर्म ही नहीं है क्योंकि 0 into एनीथिंग इज 0. ये आपको फंसाने के लिए ऐसा दिया है. तो आपको समझना है कि 15 को डिग्री डिक्लेयर करने से पहले उस टर्म में कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, उसको कंफर्म आप करेंगे एंड देन यू कैन डिक्लेयर दिस नंबर एज अ डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. ठीक है, तो हमने यहां इस क्वेश्चन के जवाब में ये सीखा कि लीडिंग टर्म क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स के डिग्रीज क्या होते हैं और पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है. राइट, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है डज पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0. सो इसका जवाब ये रहेगा कि अगर मेरी पॉलिनोमियल p ऑफ x 5 है तो यहां सिर्फ कांस्टेंट नंबर है. कांस्टेंट नंबर मतलब 5 into 1 and this can be written as 5 into x raised to 0. So this is a polynomial with degree 0. So every constant polynomial मतलब polynomial में constant ही रहेगा सिर्फ, तो उसका डिग्री हमेशा क्या रहता है 0. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब आप इसके जीरोस निकालोगे तो इसका एक भी जीरो नहीं निकलेगा. कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो रहता ही नहीं है. इसलिए जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 रहता है उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है. इट इज ऑलवेज 5. मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, यहां पर 100 रखो, आंसर 5 आएगा. इट इज अ कांस्टेंट. इट इज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x. You can put any value for x, you will get again 5. And that's why it is what? Constant polynomial. So the answer of your question is any polynomial which is a constant polynomial is having degree 0. तो बच्चों के दिमाग में जो है ना ये सवाल आना चाहिए कि अच्छा
तो सर ये पॉलिनोमियल है, अब मैं यहाँ एक कांस्टेंट लेता हूं, तो निगेटिव चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 5 है तो -5 भी चलेगा, वो भी कांस्टेंट है। 0 चलेगा? हाँ, दैट इज द वेरी वेरी क्यूरियस क्वेश्चन। 0 भी तो कांस्टेंट है, नंबर है, तो फिर क्यों चलेगा या नहीं चलेगा? तो ये नहीं चलेगा। 0 में देना गाड़ी अटक जाती है। क्यों अटक जाती है? क्योंकि यहां आप ऐसे लिख सकते हो, और इसको जब डिग्री डिक्लेयर करते हो तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट आपका नॉन जीरो चाहिए, तो ये नॉन जीरो है, इसलिए ये डिग्री बनता है। लेकिन जब आप यहां ऐसा लिखोगे या आप ऐसा लिखने की सोच रहे हो तो इसका डिग्री 0 नहीं होता है, क्योंकि इसको डिग्री मैं तभी बोल सकता हूं जब ये नॉन जीरो रहेगा, लेकिन ये तो 0 है। दैट्स व्हाई इसको डिग्री 0 नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। दिस इज व्हाट जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है ना, नॉट डिफाइंड। वी कैनॉट से दिस नंबर इज अ डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो ये डिफरेंस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 0, लेकिन कांस्टेंट में जो नंबर यूज किया जाएगा वो नॉन जीरो चाहिए। और जैसे ही आपने 0 यूज किया तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, वो जीरो पॉलिनोमियल बनेगी, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5। डिग्री 5 है, वेरिएबल भी दिया है x, तो आप x की पावर जो है पहले 5 ले लीजिए। अब इसका कोएफिशिएंट आपकी मर्जी, 0 नहीं लेना है, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, फ्रैक्शन ले लो, जो लेना है ले लो। आपको यहां मैं ले देता हूं 5/2। ओके, चलेगा, कोई इशू नहीं है। इतना भी रखा आपने तो भी आपकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 हो गया। आप इसको और बढ़ाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 है। लेकिन आप इसमें कुछ टर्म्स ऐड करना चाहते हो, ये ऐड कर सकते हो आप, ये ऐड कर सकते हो, बस इतना ही रखना चाहते हो, ठीक है। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर आप इसमें और कुछ चीजें ऐड करना चाहते हो लाइक दिस, ओके, तो देखिए जब डिग्री 5 रहती है तो टर्म्स कितने लिखे मैंने, या कितने लिख सकता हूं मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6। अब आपको किसी ने सवाल पूछा कि एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 7 है और उस पॉलिनोमियल में 10 टर्म्स हैं, तो आप उसको बोलोगे जा पागल, जब डिग्री 7 है तो उसके टर्म्स मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, 10 टर्म्स है और डिग्री 7 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टर्म्स इन द पॉलिनोमियल एंड द डिग्री। तो डिग्री जितना होता है उससे एक ज्यादा टर्म्स होते हैं मैक्सिमम, आप उससे कम भी ले सकते हो, एक भी टर्म ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू पॉलिनोमियल आपकी होना बहुत जरूरी है। तो आपकी मर्जी, आप लेकिन ये उसमें डिग्री 5 होना बहुत जरूरी है ये। अब उसके बाद टर्म, रिमेनिंग टर्म्स आप ऐड करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, दैट्स नॉट मैटर। लेकिन टर्म्स करना भी चाहते हो तो टोटल टर्म्स 6 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, मैक्सिमम 6, एट द मोस्ट 6 टर्म्स यू कैन राइट टू कंस्ट्रक्ट द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5। क्लियर? ओके, अगला सवाल, नॉमेनक्लेचर कुछ होता है। नॉमेनक्लेचर से सिर्फ हमें पता चलता है कि उसमें क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा। अब ये दो तरीके पे डिपेंड है। पहला तरीका है कि टर्म्स के ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, पॉलिनोमियल, और मैंने लिखा 2x + 3। ओके, उसका जो है ना टर्म्स काउंट कीजिए, तो ये एक टर्म, ये 2 टर्म, तो टर्म्स 2 है, इसके लिए इसका नाम आता है बाइनोमियल। बाय मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म्स, 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल। तो बाइनोमियल कहने से आपको पता चलता है कि इसमें 2 ही टर्म रहेंगे, इससे डिग्री का कोई लेना देना नहीं, आप डिग्री कुछ भी ले सकते हो, टर्म्स काउंट करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल मैंने लिया q ऑफ y, जिसमें मैंने लिया 3y, तो इसमें एक ही टर्म है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल। अब मैंने f ऑफ t लिया, जिसमें 4t² प्लस 5t प्लस 7, 1 2 3, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो इट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो नोमियल जब भी आता है, उसी प्रकार अगर 4 टर्म्स होंगे तो उसको टेट्रानोमियल बोलते हैं। टेट्रा मीन्स 4 and nomial means terms.
So this is nomenclature depend on the number of terms present in the polynomial. और एक तरीका होता है जो डिग्री पे डिपेंड होता है. अब इसी में देखिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. तो जिसकी डिग्री 1 रहती है उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, because it represents line always. लीनियर पॉलिनोमियल ये डिग्री पे डिपेंड है नॉन, तो इससे आपको डिग्री पता चलती है, टर्म्स नहीं पता चलते. मे बी एक टर्म हो सकती है, मे बी 2 टर्म हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री अगर 1 है तो 3 तो हो नहीं सकते. लेकिन डिग्री मीन्स ओनली रिलेटेड टू दैट, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है रिलेटेड टू डिग्री, और ये जो है टर्म्स पे डिपेंड, नाम्स. अब यहां देखिए ये सिंगल है, इसका भी पावर 1 है, तो यहाँ 2 टर्म थे फिर भी वो लीनियर है, यहाँ 1 टर्म है फिर भी वो लीनियर ही रहेगी. हाँ, स्पेशली आपको मेंशन किया गया कि लीनियर एंड बाइनोमियल, तो डिग्री 1 लेना है और 2 टर्म लेना है. लीनियर एंड मोनोमियल, तो ये लीनियर एंड मोनोमियल है. ठीक है, तो ये जो है ना, दिस इज द डिग्री 2. तो डिग्री जब 2 रहेगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने रहेंगे? 3. इसलिए वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो आप, या क्वाड्रेटिक बाइनोमियल भी लिख सकते हो, या क्वाड्रेटिक ओनली 4t² ही टर्म लिया मैंने, ये 2 टर्म निकाल दिए, तो इट इज क्वाड्रेटिक मोनोमियल. तो इसी प्रकार, या फिर क्वाड्रेटिक हो गया. तो 3 अगर रहेगा तो मान लीजिए h ऑफ z रहा, और उसमें ये है डिग्री जो है ना 3 है, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल ना. So these are the just terminologies and nomenclature, जिससे उस नाम से हमें वो नॉलेज मिलता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है. तो ये introductory part of the chapter polynomials in class 9, and this is from the book Nirfa Mathematics 9.